Namaste and welcome to this session of Sahaj Yoga. आप सभी का सहयोग के इस सत्र में स्वागत है. Sahaj Yoga is a unique discovery by Her Holiness Shri Mataji Nirmala Devi and is a gift to humankind. सहयोग एक अद्भुत आविष्कार है परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा मानवीय उत्थान के लिए. आइए जानते हैं सहयोग क्या है. सहज का मतलब सरल है, तत्क्षण है, जो बहुत ही सहज रूप से घटित हो जाए. इसका संधि विच्छेद करें तो सह का मतलब साथ और ज माने जन्मा. The meaning of Sahaj as explained by Shri Mataji is something that is born within us. And yoga, we must know the meaning of this word since we are celebrating the International Yoga Day. It means union. Comes from the Sanskrit word yuj, which means to unite. योग का अर्थ है जुड़ना. भारत में योग को बहुत ऊंची पदवी दी गई है. आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहा गया है. Here we seek union of our individual consciousness with the all-pervading consciousness. तो आइए जानते हैं सहज योग हमारी मदद कैसे कर सकता है. हम सब लोग परिचित हैं योग से, ध्यान से, कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं, इसके बारे में सुना है. We all know something about yoga and meditation, and we all try to connect to the all-pervading power in our own way, or we at least think about it. चाहे हम उसको भगवान के रूप में माने या कोई कॉस्मिक पावर कहें, इतनी बात तो साफ है कि कोई ना कोई शक्ति है जो हमारे हृदय में स्पंदन को चला रही है, जो हमारी चेतना को चला रही है, जो हमारे आसपास सभी जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को बढ़ा रही है. That power which not only runs our heartbeat but also governs universes after universes. We all believe in that power, whether we call it God or by some other name. And when we try to silence ourselves or to meditate, the biggest obstacle is thoughts. And these thoughts are basically of two kinds. Either they come from our past or pour in from our future. And in between these imaginary past and future thoughts is the razor sharp edge of the present, which is actually reality. So if instead of oscillating between past and future, we could somehow be stationed in the present, we would be in meditation. Now, we are going to learn some things which have been told by Shri Mataji. And immediately we may not be able to believe everything. So let's take these things as hypothesis. जो भी हम बातें अभी सुनेंगे, अगर हम एकदम से उनको नहीं मान पाते, ये श्री माताजी द्वारा बताई गई हैं, तो हम उनको समझ लेते हैं, जान लेते हैं, और जब वो प्रूव हो जाए तो उसको पूरी तरह मान लेंगे. तो बच्चा जब 2 से 2.5 महीने का होता है माँ के गर्भ में, तो उसके अंदर कहते हैं कि जान आ गई. तब ये शक्ति, जिसको हम ऑल परवेडिंग पावर या परमात्मा की शक्ति कह सकते हैं, आदि शक्ति का अंश, उस बच्चे के अंदर आती है. सिर के ऊपर एक जो तालू का हिस्सा होता है, वहां से दिस पावर विच is the all-pervading power enters the baby when it is in its mother's womb, about 6 to 8 weeks old, from the top of the head, which is called the fontanelle bone area. और ये शक्ति अंदर आती है शरीर में, सारे अंग प्रत्यंग बनाती है, एक सूक्ष्म यंत्र भी बनाती है, और उसके बाद जो रेजिडुअल एनर्जी है वो नीचे रीढ़ की हड्डी में एक त्रिकोणाकार अस्थि होती है, उसमें जाके बैठ जाती है 3.5 कुंडल में. दिस गोज एंड सीट्स in the triangular bone which is known as sacrum bone in 3.5 coils, and this energy is known as the kundalini.
Interestingly, the Greek doctors called this bone sacrum thousands of years back because they knew it was something sacred. ये नाम जो सेक्रम है ग्रीक भाषा से आया है और इसका मतलब है पावन. सहजों की संस्थापिका परम पूज्य माताजी श्री निर्मला देवी, इन्होंने 1970 से सहयोग शुरू किया और आज पूरे विश्व में करीब 140 से भी ज़्यादा देशों में सहयोग फैल चुका है. सहयोग कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई फीस नहीं है. इसका एक बहुत अहम और सरल कारण यह है कि ये प्रेम पर आधारित है. परमात्मा जिनको हम परम कहते हैं वही प्रेम है. अब चाहे परमात्मा कहें या कॉस्मिक पावर कहें, पर ये प्रेम हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं. Just like we cannot pay for the sprouting of a seed when it is placed in the earth's womb, similarly we cannot pay for something which is within us and which is granted to us by God. जैसे हम एक बीज के अंकुरित होने के लिए कोई मोल नहीं दे सकते धरती माँ को, वैसे ही इस योग के लिए जो हमारे अंदर घटित होता है कोई भी पैसा मान्य नहीं रखता. श्री माता जी ने पूरे विश्व में काम किया, कभी भी उनके सेशंस में कोई चार्ज नहीं था, ना आज तक सहयोगी के सेशन के लिए कोई चार्ज होता है. और जैसे जैसे आप इसमें जमते जाएंगे आप इस बात को और अच्छे से समझते जाएंगे. श्री माता जी का जन्म 21 मार्च 1923 को हुआ था छिंदवाड़ा नामक स्थान में. श्री माता जी was born on 21st March 1923 in the geographical center of India in a place called Chhindwara. She was born to freedom fighter parents, Shri P.K. Salve and Srimati Cornelia Salve, and she herself was a youth leader in the Indian National Freedom Movement. श्री माता जी महात्मा गांधी के आश्रम में रही. 7 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला भाषण दिया उनके आश्रम में, और उनकी एक कुछ बातों की वजह से वो अलग जानी जाती थी. जैसे जब वो स्कूल जाती थी तो अपने जूते हाथों में पकड़ कर जाती थी, क्योंकि वो धरती माँ से स्पर्श में रहना चाहती थी, धरती माँ को अपना गुरु मानती थी. श्री माता जी का विवाह हुआ. उसके बाद 1970 में उन्होंने सहयोग शुरू किया. She was recognized all over the world by different countries, by United Nations. She was nominated twice for the Nobel Peace Prize. She was given a doctorate in Russia and many other such honors. Her greatest concern was that human beings should realize their true potential through the process of self-realization and achieve the ultimate aim of being born. श्री माता जी ने हमारे सूक्ष्म यंत्र के बारे में बताया. ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से बताया गया है. इसी ज्ञान को श्री माता जी ने सरल और प्रैक्टिकल कर दिया है. थोड़ा सा जानते हैं इस यंत्र के बारे में. इसमें 7 चक्र हैं और 3 नाड़ियां हैं, जैसे आप देख सकते हैं. इस यंत्र को भी वही शक्ति बनाती है जो बच्चे के अंदर आई थी, जो वो माँ के गर्भ में था. So this subtle system is made by the energy which creates the organs inside the child's body, puts life into the child when it is in the mother's womb. There are 7 energy centers and 3 channels. जो सबसे नीचे सबसे पहला चक्र है जिसका नाम मूलाधार चक्र है. इसको आप लाल रंग में देख सकते हैं. ये पेल्विक प्लेक्सस को कॉरेस्पॉन्ड करता है. फिजिकल लेवल पे जितने एक्सक्रीटरी फंक्शंस हैं बॉडी के वो इस प्लेक्सस से होते हैं. इसकी मेन क्वालिटी इनोसेंस है, प्योरिटी है, और इसी प्योरिटी पे, इसी पावनता पे हमारी त्रिकोणाकार अस्थि टिकी हुई है, जिसमें माँ रूपी शक्ति है, जिसको हम कुंडलिनी के नाम से जानेंगे. On the basis of purity is resting the great power, the great motherly power which is inside all of us, which is known as the Kundalini.
There are 6 more centers or chakras above this. We will briefly come to know. The second is the Swadhisthana chakra or the aortic plexus. It looks after the liver, spleen, and pancreas in conjunction with the Nabhi, which is third. And it also supplies gray cells to our brain for thinking. When we think too much, then all the energy of the Swadhisthana goes towards the brain and the other organs are neglected. जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो बाकी के अंग उस ऊर्जा को नहीं पा पाते जो स्वादिष्टान चक्र से उनको मिलती है, and the result is diabetes. शक्कर रोग की बीमारी हमको हो सकती है. तीसरा चक्र जो नाभि है, ये पाचन की क्रिया को चलाता है. सोलर प्लेक्सस या सीलियक प्लेक्सस भी कहते हैं. धर्म की स्थापना करता है हमारे अंदर. ह्यूमन बीइंग या इंसान को सबसे ऊंचा माना गया. इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, because human beings have the understanding of right and wrong, have the understanding of dharma, which is not something external, how we identify ourselves as Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, or to whatever religion we belong externally, but the understanding that the human being has internally comes to him or her from this Nabhi chakra. And around this Nabhi is a circular area which is known as the Bhav Sagar or the Guru principle. जितने सद्गुरु हुए हैं आज तक, उन्होंने यही बताया है कि संतुलन के मार्ग पे रहते हुए हमें अपना जीवन बिताना है और सारा ज्ञान हमारे अंदर है. तो जब ये शक्ति जागृत होती है तो इस भवसागर के गैप को भरना शुरू कर देती है. उससे हमें ये ज्ञान अंदर से मिलना शुरू हो जाता है, विच इज डिवाइन नॉलेज. फोर्थ इज द अनहद और द कार्डियक प्लेक्सस, जो हमारे हार्ट को चलाता है, हार्ट बीट रेगुलेट करता है, बच्चों में एंटीबॉडीज बनाता है 12 साल की उम्र तक, और फेयरलेसनेस की क्वालिटी देता है, निडरता की का जो गुण है वो हमें प्रदान करता है. पांचवा चक्र विशुद्धि का है, कम्युनिकेशन का चक्र है, जो हम एक साथ बैठ के बात कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं. जो टीम वर्क हमारे अंदर आता है वो विशुद्धि चक्र से आता है. छठा चक्र आज्ञा का है, जो ऑप्टिक क्याज्मा पे सिचुएटेड है, क्षमा का स्थान है. यही सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी है, सबसे बड़ा गुण है. और जब हम क्षमा कर पाते हैं तभी ये शक्ति इस चक्र को लांघ कर सातवें चक्र पर आती है, जिसको सहस्त्रार यानी 1000 पेटल लोटस कहा गया है. So this area on top of the head is on the limbic area. It's the last center of evolution, and doctors incidentally have identified 996 nerves in this area. So it is not without reason that it was named the Sahasrara or the 1000 petal lotus. And when the Kundalini rises and is able to cross all the chakras up to Agya and moves into the Sahasrara, then it relaxes our brain, our thoughts. We feel this energy on top of our head and from our hands as a gentle cool breeze, and we go into state of meditation or samadhi. जब ये शक्ति जागृत होती है, सहस्त्रार को भेजती है, तो हमें ध्यान की स्थिति देती है. इसकी अनुभूति हमारे हाथों पे और सिर के ऊपर से ठंडक के रूप में होती है और ये हमें निर्विचारिता की तरफ ले जाती है. इसके अलावा 3 नाड़ियां हैं. लेफ्ट में एड़ा नाड़ी है जो इच्छा शक्ति है, नीले रंग में आप देख सकते हैं. राइट में पिंगला नाड़ी है जो क्रिया शक्ति है, पीले या येलो कलर में आप देख सकते हैं. और बीच की नाड़ी व्हाइट कलर में सुषुम्ना नाड़ी है. This is the central channel. This corresponds to the left sympathetic nervous system, right sympathetic nervous system, and the central nervous system. This has also been medically researched by doctors and scientists, not only in India, but other countries as well, like Australia, Russia, and Italy. So, as they say, the proof of the pudding lies in eating it. तो आइए इसको महसूस करें. श्री माता जी ने सहयोग हम सबको दिया है. उनकी प्रेजेंस में हजारों लाखों लोगों की कुंडलिनी जागृत होती है. शी इज द मास्टर ऑफ कुंडलिनी. Let's take advantage of this day and this moment to get our self-realization. We will briefly see what happens during the self-realization through some simple graphic. So जैसा आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं,
जो पहला चक्र है, which is below the Kundalini, it stays there and the Kundalini rises and crosses the 6 chakras above it, which leads to a self-realization. And the basis of this is our pure desire and the authority who can grant this. तो जो कुंडलिनी है वो जागृत होती है हमारी शुद्ध इच्छा से और उसको प्रदान करने वाले की कृपा से। श्री माता जी ने बहुत आसान प्रोटोकॉल एक बताया है आत्म साक्षात्कार पाने के लिए। इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें श्री माता जी स्वयं ये क्रिया करवाएंगी, उसको समझाएंगी पहले फिर करवाएंगी। तो उस वीडियो को हम बहुत ध्यान से पहले देखेंगे, समझेंगे, और जब श्री माता जी हमसे कहेंगी उसको करने के लिए तो उसको करेंगे भी। बाद में श्री माता जी हमको आंखें बंद करके ये प्रोटोकॉल करवाएंगी। तो जैसे जैसे वो बोलती जाएंगी वैसे वैसे हम करते जाएंगे। थोड़ा सा पहले इसको एक बार देख लेते हैं ताकि रिहर्सल हो जाए। आप दोनों हाथ खोलें, प्लीज ओपन बोथ योर हैंड्स एंड कीप देम इन योर लैप। सो यू कैन सिट आइदर ऑन अ चेयर और ऑन द फ्लोर। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो दोनों पैर अलग अलग रखें। अगर आप फ्लोर पे बैठे हैं तो आप क्रॉस लेग बैठ सकते हैं, चौकड़ी मारकर बैठ सकते हैं। आई एम ऑल्सो सिटिंग ऑन द फ्लोर क्रॉस लेग। सो इफ यू हैव एनी pain or you're unable to sit on the floor, then please feel free to sit on a chair, but just keep both your legs apart. And please close all disturbances for the next half an hour, all external disturbances. This is a very important time in which you will get your self-realization. Please respect yourself and please respect this time which has come to you. इस समय का मान रखते हुए थोड़ी देर के लिए, करीबन आधे घंटे के लिए, बाहर से आने वाली सारी डिस्ट्रैक्शंस, सारी बाधाओं को भूल जाइए। कोई भी फ़ोन है या किसी से बात करनी है उसको आधे घंटे बाद कीजिएगा। आराम से बैठिए, प्रसन्नचित्त होकर बैठिए और थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। तो आपका लेफ्ट हैंड जो है, बायां हाथ इच्छा का हाथ है, वो खुला रहेगा सारा समय गोद में, और दाहिना हाथ जो है वो आपकी अलग अलग चक्रों पर जाएगा। सबसे पहले अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रख लेंगे, जहां पे हम सवाल करते हैं कि माँ क्या मैं आत्मा हूं। फिर इसी हाथ को अपने पेट के ऊपर वाले हिस्से में ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में ही, जहां हम पूछेंगे माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूं। फिर थोड़ा और नीचे ले जाएंगे जहां पेट और टांग जुड़ते हैं, यहाँ पे अपनी इच्छा से मांगेंगे माँ कृपा करके मुझे शुद्ध निर्मल ज्ञान दीजिए। फिर वापस ऊपर ले आएंगे पेट के ऊपर वाले हिस्से में, यहाँ पे मानेंगे माँ मैं स्वयं का या स्वयं की गुरु हूँ। फिर वापस हृदय पे ले जाएंगे और मानेंगे माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। फिर इसी हाथ को गर्दन और कंधे के जोड़ पे ले जाएंगे आगे से और 16 बार कहेंगे माँ मैं निर्दोष हूँ। फिर हाथ को माथे पे ले जाएंगे, क्षमा करेंगे, सिर के पीछे ले जाएंगे, अपने लिए क्षमा मांगेंगे और अंत में हाथ को पूरा तान के स्ट्रेच कर लेंगे, उंगलियां तनी हो और हथेली के बीच के हिस्से को सिर के ऊपर रखकर 7 बार क्लॉकवाइज अपने स्कैल्प को घुमाएंगे और यहाँ पे हम योग आत्म साक्षात्कार के लिए प्रार्थना करेंगे 7 बार। तो आप सब तैयार हो तो हम ये वीडियो शुरू करेंगे। प्लीज बी रेडी फॉर द वीडियो। प्लीज वॉच इट विद ऑल अटेंशन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। और ये वीडियो एक हॉल में दिया गया था जहाँ लोग चेयर्स पे बैठे थे, तो श्री माता ने उस हिसाब से बताया है। अगर आप जमीन पे बैठे हैं तो वैसे ही बैठे रहें, क्रॉस लेग। First of all, you all have to forgive yourself. प्रसन्न चित्त होके बैठे, प्रसन्न चित्त। पहले तो खुद को माफ कर दीजिए।
ऑल्सो फॉरगिव अदर्स। और सबको माफ़ कर दीजिए, पूरे दिल से माफ़ कर दीजिए एक बार सबको। हिंदू मुसलमान को कर दे, मुसलमान हिंदू को कर दे, सिख मुसलमानों का कर दे और मुसलमान फिर सिखों को कर दे। इस तरह से सब एक दूसरों को माफ़ कर दो, पहले ख़त्म करो झगड़े, सबको माफ़ करो। फॉरगिव एवरीवन। एक भाई दूसरे से नाराज़ है, ये सब हो नहीं सकता। सब नाराज़गी छोड़ दीजिए, आप माफ़ कर दीजिए। Though it is a myth, whom do we forgive? And what do we do? Nothing. It's a myth. When we say I forgive means what? And when I don't forgive also what? Nothing is a myth. But if you don't forgive, then you are a heavy person. I can't get your Kundalini all right. So you better forgive it. It's just a myth. ये तो झूठ है कि हम किसी को माफ़ नहीं करते या करते कुछ भी नहीं, यूं ही कह दिया माफ़ कर दिया। मैंने किया क्या? तुमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक बात है, जब आप दूसरों को माफ़ नहीं करते तो आप गलत लोगों के इशारों पे खेल रहे हैं, इसलिए माफ़ कर दीजिए। खुद को माफ़ करिए, दूसरों को माफ़ कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए सही कह दीजिए कि मैंने माफ़ कर दिया सब। अब ठीक है। अब एक विनती है कि पैर के जूते अगर हटा ले तो ये जो माँ है ना, ये बड़ी मदद करे। प्लीज़ रिमूव योर शूज़ इफ़ पॉसिबल, बिकॉज दिस मदर अर्थ इज़ वेरी काइंड टू अस। वो सारी हमारी परेशानियाँ आज तक उठाती है, ये और थोड़ी बहुत खींच लेगी। अच्छा, मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आप अपनी कुंडलिनी कैसे जागृत कर सकते हैं। आई विल टेल यू हाउ टू रेज योर ओन कुंडलिनी। वेरी सिंपल थिंग इट, यू विल डू इट योरसेल्फ। आप लेफ्ट हैंड जो है उसको मेरे और करें। पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी। दिस इज द हैंड दैट रिप्रेजेंट्स your desire for realization, because left hand represents the power of desire. But Kundalini is the pure desire. And the right hand is the power of action, which is absolutely heavy in Delhi. Too much action. Too much action without any results. Please put your left hand towards me and right hand to be used for the action, for just removing the hurdles for the Kundalini to rise. Kundalini will rise spontaneously, but if there is any hurdle, you can remove it very easily with your own hands, with your right hand. अपने right hand से क्रिया करनी होगी और left hand से इच्छा करनी होगी। right hand को इसलिए इस्तेमाल करना है कि बीच में अगर कोई बाधाएं आ जाए जबकि कुंडलिनी चढ़े तो उसे हम हटाते चलें, इसलिए कि कुंडलिनी का जो चढ़ना है जो सहज ही है, लेकिन उसको मदद हो जाए। सबसे पहले हम आपसे कहेंगे, बाद में जब आंख बंद करेंगे तब, कि अपना राइट हैंड आप हार्ट पे रख लें। यहाँ पर हार्ट है, लेफ्ट में है। लेफ्ट हैंड हमारे और करें, राइट हैंड यहाँ रखें। प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी एंड राइट हैंड ऑन योर हार्ट। दिस इज द हार्ट। Here resides the spirit. Then you have to put your right hand
on the upper portion of the abdomen on the left hand side. The whole work is on the left hand side. इसके बाद अपना राइट हैंड जो है वो आप अपने लेफ्ट साइड में पेट के ऊपरी हिस्से में रखिए. सारा काम हम लेफ्ट साइड में करेंगे. उसके बाद यही राइट हैंड आप नीचे पेट में नीचे की और लेफ्ट हैंड पे रखें. ये चक्र जो है ये शुद्ध विद्या का है, प्योर नॉलेज का है. दिस इज द सेंटर ऑफ प्योर नॉलेज इन द लोअर पार्ट ऑफ योर एब्डोमेन. Pure knowledge is worked out through this center. Then we raise our hand again on the upper portion of the abdomen. फिर से ऊपरी हिस्से में हम ले आते हैं पेट के लेफ्ट हैंड साइड में. This is the center of your mastery. ये गुरुओं ने बनाया हुआ हमारा सेंटर है. जो बड़े बड़े गुरु हो गए संसार में, उन्होंने ये सेंटर हमारे लिए बनाया हुआ है. उसको जागरूक करना है और वो चाहते हैं कि तुम लोग अपने गुरु बन जाओ उनके आशीर्वाद से. All these great saints want us to be the saints, to be the masters through their grace. उसके बाद फिर से हाथ हृदय पे जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पर कि आत्मा का वास है. प्लीज रेज योर राइट हैंड टू योर हार्ट अगेन वेयर resides the spirit. Then raise your right hand on the left hand side of your neck. This is very important. Most of you are catching this today. See, my sari has become wet with your catches. It's such heat emitting from here. You turn your head to the right like this. Now this is the center that catches very much because we feel guilty for nothing at all. सारे खून माफ है. Don't feel guilty. You are not guilty. Who has told you you are guilty? Why do you judge yourself? God doesn't think you are guilty. So don't think you are guilty for anything whatsoever. Just turn your head and with full confidence you have to say, I am not guilty. Now raise your this hand across your forehead. सर को उठा, सर के ऊपर माथे पर इसको आड़ा आप पकड़ें और जोर से दबाएं जिस प्रकार हम सर दर्द में दबाते हैं. Please press it on both the sides. Now put the hand on the back. This is आज्ञा चक्र की दो खिड़कियां. Back side of the head and push back your head. This is आज्ञा चक्र. Now you stretch your hand. हाथ को आप पूरी तरह से तनाव दें और ये जो बीच का हिस्सा है, हथेली के जो बीच का हिस्सा है, इसे बराबर अपने ब्रह्मरंध्र पे रखें, तालु भाग में रखें. प्लीज कीप दिस पोर्शन on the top of your head in the fontanelle bone area where it was a soft bone when you were a child. Now press it hard please, and move it slowly 7 times. Pressing hard the scalp slowly 7 times. That's all. Nothing much is to be done. All right. 7 मर्तबा दबा करके जोर से क्लॉकवाइज घड़ी के जैसे, घड़ी के कांटे जैसे घूमते उस दिशा में घुमा करके और छोड़ दीजिए. बस इससे ज्यादा कुछ नहीं. आंख बंद कर लें. प्लीज क्लोज योर आइज. यू आर नॉट टू ओपन योर आइज एज लॉन्ग एज आई टेल, क्योंकि आपका चित्त अंदर जाना चाहिए. आंख से चित्त बाहर आ जाता है. Because your attention is sucked in, so please keep your eyes shut. There is no mesmerism for eyes to be opened. So please keep your eyes shut. Now, put your left hand towards me and both the feet
on the Mother Earth, separated from each other. If you are wearing your spectacles, you can take it out. There's no need because eyes might improve. आँखों में अगर चश्मा वगैरह हो तो हटा लीजिए, क्योंकि आँख की दृष्टि भी अच्छी हो सकती है। आँख बंद रखिएगा जब तक मैं न कहूँ, कृपया आँख न खोलिएगा। अपने पे विश्वास रखें। Have faith in yourself. That's very important. Now please keep your left hand like this, right hand on your heart. Right hand on your heart. There is no need to show anything outward. बाहर कुछ दिखाने की जरूरत नहीं कि कोई हंस रहे हैं, कि कोई कूद रहे हैं, कोई करने की जरूरत नहीं. There's no need to jump or do anything of the kind. Just sit down with your dignity, straight, without any strain on your body. Now don't think of your illnesses or anything, just now forget about it. Once you get your realization, you can get everything corrected automatically. Now, please put your right hand on your heart, right hand on your heart. हृदय पे रखें, दिल पर रखें. यहाँ पे श्री आत्माराम बसते हैं. आंखें बंद कर लें. Please close your eyes. Now please ask me the fundamental question. Mother, am I the spirit? मुझे मूलभूत प्रश्न पूछे. माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार पूछे, 3 times. From your heart. Mother, am I the spirit? अगर आप श्री माता जी कह सकते हैं तो श्री माता जी कहिए, नहीं तो मदर कहिए. Am I the spirit? Ask the question. Because you are like a computer. The answer comes. You are not this body. You are not this mind. You are not this ego. You are not your conditioning. You are the spirit. Now keep your eyes shut, both the legs apart from each other. Sit straight and bring down your right hand on the left hand side of the stomach, on the upper part. सीधे बैठिए, दोनों पांव अलग करके बैठिए और ये अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में ले आइए, वहाँ दबाइए. ये गुरु का तत्व है. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द गुरु. इफ यू आर द स्पिरिट, you are also your master. So please ask me a question, another fundamental one. Mother, am I my own master? Am I my own guide? दूसरा मूलभूत प्रश्न यहाँ पूछिए गुरु तत्व पर. माँ, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? प्रश्न पूछिए. ये भी प्रश्न 3 बार. प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन 3 times. अब अपना हाथ इस गुरु तत्व पे रखने के बाद आप अपना हाथ पेट के नीचे के हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड में. नाउ प्लीज पुट योर right hand on the left hand side in the lower part, lower region of your abdomen. Press it hard. दबाइए. ये चक्र शुद्ध विद्या है, उसे चलाने वाला है. This is the center of pure knowledge. Now I cannot force you to do things. I respect your freedom. So you have to ask that you want pure knowledge. I cannot force it on you. आप पे मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ. मैं आपके स्वतंत्रता का आदर करती हूँ. इसलिए आप कृपया खुद कहें कि आपको शुद्ध विद्या चाहिए, नहीं तो मैं आप पे ज़बरदस्ती कतई नहीं कर सकती. इसलिए पूरे दिल से 6 मर्तबा कहें, इस चक्र में 6 पंखुड़ियाँ हैं. माँ, मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए.
For that you have to ask yourself, Mother, may I please have the true knowledge, the pure knowledge. You have to ask yourself. I cannot force on. जब पूरी ही स्वतंत्रता देनी है तो ये छोटी सी स्वतंत्रता को तो हमें मानना ही पड़ेगा. छह मर्तबा कहिए, 6 times please, because there are 6 petals to this center. Okay. With this asking, the Kundalini rises. Starts moving, it gets awakened. ये कहते ही आपकी कुंडलिनी का जागरण शुरू हो जाता है. अब कुंडलिनी की मदद के लिए आप ऊपर की तरफ चलिए. Just to help the Kundalini to go further, you have to move your hand upwards. Put your right hand on the left hand side of your abdomen, in the upper part. अपना right hand आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में पकड़िए और दबाइए. और दबा करके यहाँ पर गुरु तत्व में आप कहिए, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कुंडलिनी की मदद करने के लिए 10 मर्तबा कहिए कि मां मैं स्वयं का गुरु हूँ. प्लीज पुट योर राइट हैंड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन on the left hand side and with full confidence to help the Kundalini to rise. Please say 10 times with full confidence, Mother, I am my own master. दस मर्तबा कहिए 10 times. अब raise your hand now to your heart. कृपया अपना हाथ अब अपने हृदय पे रखें. Here resides the spirit. Now you have to say with full confidence the greatest truth of your life, Mother, I am the spirit. Say it 12 times please. फिर से हृदय पे हाथ रख के और 12 मर्तबा कहिए, माँ मैं आत्मा हूँ. ये सबसे बड़ा सत्य आपके जीवन का है. माँ मैं आत्मा हूँ. पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहिए. इसे कुंडलिनी चढ़ेगी. 12 मर्तबा कहिए, 12 मर्तबा. हाँ चल रही है, राइट में बढ़िए कट रही है. अब ये जान लेना चाहिए कि परमात्मा प्यार के सागर है, आनंद के सागर है, लेकिन सबसे अधिक क्षमा के सागर है. इसलिए हम कोई ऐसी गलती नहीं कर सकते जो परमात्मा क्षमा नहीं कर सकते. You realize this one point, that God is the ocean of compassion and love. But above all, He is the ocean of forgiveness. And we cannot do any mistake that He cannot forgive. So now raise your right hand and put it across from the front side in the corner of your neck and your shoulder and turn your head to the right. इस पूर्ण विश्वास के साथ आप अपना राइट हैंड कंधे पर रखिए, जहाँ पर कंधा और गर्दन में कोण होता है, और जोर से पकड़िए और गर्दन को राइट साइड में मोड़ दीजिए. यहाँ पर पूर्ण विश्वास के साथ फिर आप कहिए कि माँ मैं कोई दोषी नहीं हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ. हियर विथ फुल कॉन्फिडेंस से 16 times, Mother, I am not guilty at all. Please say 16 times. 16 मर्तबा कहिए. और जिनको शौक है कहने का कि मैं बहुत गिल्टी हूँ, वो कुछ सज़ा भी भुगत लें, 108 मर्तबा कहिए.
अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो. If you don't believe in yourself, then you may as a punishment take over and say 108 times just to punish yourself. I have told you to keep a pleasant attitude towards yourself. Prasanna chitta hoiye, prasanna chitta. Be pleasant towards yourself. You have no business to curse yourself. You have no business to do that. You have no right to do that. Sixteen times. सबसे ज्यादा तो यही चक्र पकड़ रहा है. न जाने कौन सा गिल्ट आप लोगों को खोपड़ी पे बैठा हुआ है. अगर हमारे बातचीत में ऐसे कोई बात आई हो तो उसको भूल जाइए. हम तो दूसरों के लिए कह रहे थे, आपके लिए थोड़ी. आपने तो कोई भी नहीं गलती की. आप तो सब राजा बेटा लोग हैं. You have done no mistakes. I was talking about some other people, not about you. हाँ, अब अपना हाथ जो है अपने माथे पर आड़ा रखिए. Please put your hand on your forehead across and press it on both the sides. दोनों तरफ से दबाइए जैसे सर में दर्द होता है. यहाँ पर कितनी बार नहीं, लेकिन हृदय से कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दी. Please say here from your heart. How many times is not the point. Mother, I have forgiven everyone from your heart. How many times? Press it. Don't keep it lightly. Keep it hard on both the sides. Press it. In the center you don't have to, but on the sides press it. Slowly, slowly, and say, Mother, I have forgiven everyone. I forgive everyone. बहुत जरूरी है साहब कहना. राइट हैंड से करिए, लेफ्ट हैंड से नहीं. लेफ्ट हैंड तो हमारी ओर होना चाहिए. अब यही हाथ पीछे की ओर ले जाइए. प्लीज टेक दिस हैंड ऑन द बैक साइड एंड पुश योर हेड ऑन इट. अपना सर उस पे तौल लीजिए ऊपर की ओर. यहाँ पर आप अपने सुविधा के लिए कह सकते हैं कि परमात्मा आप मुझे क्षमा करें, मैंने कोई अगर गलती कर दी हो तो. अपनी सुविधा के लिए. For your own satisfaction, you may say here, "Oh Lord, please forgive me if I have done any mistakes." For your own satisfaction. Push back your head. Push back your head. Push back. Weigh it on your hand. Weigh it on your hand. Now say it. पूर्ण हृदय से कहें. With complete sincerity from your heart, please say that, "Oh Lord, please forgive me if I have done anything wrong." But don't feel guilty. उसके आप अपनी गलतियां और पाप मत गिनते बैठिए. हाँ, अब इस हाथ को स्ट्रेच कर लीजिए. प्लीज स्ट्रेच योर हैंड. राइट हैंड. लेफ्ट हैंड हमारे और. प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी. राइट हैंड स्ट्रेच इट. इसको तान लीजिए. इस हाथ को तान कर इसका बराबर बीचला हिस्सा जो है सर के ऊपर में ब्रह्मरंध्र पर, जहाँ पे कि आपका तालु भाग था, इसको दबा के पकड़िए और उंगलियां तान दीजिए. और इसको धीरे धीरे घुमाइए 7 मरतबा घड़ी के कांटे जैसे. स्ट्रेच द हैंड. Put the center of it on top of the fontanelle bone area where you had a soft bone as a child. Press it hard and move it in a clockwise manner slowly. And now here again, I cannot take your freedom. You have to ask for your self-realization. यहाँ फिर मैं आपकी स्वतंत्रता के आदर में ये कहूँगी कि आपको कहना होगा कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए. So please say, Mother, may I have self-realization? और मदर प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन. माँ हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए. आप अगर कहेंगे नहीं तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती. आई कैन नॉट फोर्स ऑन. जस्ट आस्क फॉर इट. सात मरतबा. 7 times. 7 times please move it and say it.
Now, please take down your hand. Slowly. Open your eyes slowly. Now watch me without thinking. Let's see if you can do it. Without thinking, can you watch me? बगैर सोचे आप मेरी ओर देखिए, निर्विचारिता में। निर्विचारिता में आप मेरी ओर देखिए। आंख धीरे से खोल लीजिए। अब लेफ्ट हैंड अपने सर पे रखें, जहाँ पर कि ब्रह्मरंध्र है, यहाँ पर रखें और देखिए कि कोई ठंडी हवा आ रही। प्लीज सी इफ देयर इज अ कूल ब्रीज कमिंग। पुट योर लेफ्ट हैंड, नॉट द राइट हैंड, द लेफ्ट हैंड। नाउ द राइट हैंड इज टुवर्ड्स मी। पुट इट लिटिल अबव, सर के ऊपर। कोई 2-3 इंच, किसी किसी का तो 11 इंच में निकलता है। देखिए कुछ ठंडक सी आ रही है। सर में से किसी किसी का गर्मी आएगी, फिर ठंडक आना शुरू हो जाएगी। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखें। मेरी ओर देखते रहे निर्विचार में। देखिए यहाँ ठंडा ठंडा आ रहा है। इज देयर अ कूल ब्रीज कमिंग आउट ऑफ योर ओन हेड? जस्ट सी इट इज कमिंग, कूल ब्रीज इज कमिंग आउट ऑफ योर हेड। यू कैन बेंड योर हेड एंड सी। सर को जरा झुका के देख लें। देखिए कि आ रही है ठंडक। अगेन पुट योर राइट हैंड टुवर्ड्स मी प्लीज एंड सी विद द लेफ्ट हैंड। फिर से राइट हैंड मेरे ओर करें, लेफ्ट हैंड से फिर देखें। कुछ ऊंचा आ रहा है। देखिए ठंडक आ रही है। अब दोनों हाथ ऊपर में आकाश की ओर करके सर पीछे करिए। प्लीज पुट बोथ द हैंड्स टुवर्ड्स द स्काई एंड पुश बैक योर हेड एंड आस्क द क्वेश्चन। सवाल करिए कि माँ, क्या यही ब्रह्म शक्ति है? यही वो निर्गुण है जिसकी बात की गई है? यही वो निराकार है? 3 बार प्रश्न करें। प्लीज आस्क द क्वेश्चन, मदर, इज दिस द कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट? इज दिस द ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव? Ask the question 3 times, please. Now put down your hands, please. Now put your hands towards me. See if you are feeling the cool breeze. You'll feel absolutely relaxed. There's no thought in your mind, and you are feeling a cool breeze in your hand. Now what happens? People get realization. They go away, and when I come back, then come and see. And in between they have some diseases. I want you to grow, because you are not going to remain like a small little seed and die like a small little seed. मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा बीज न रहते हुए बड़ा वृक्ष हो जाए। बहुत से लोग हैं मेरे प्रोग्राम में आएंगे, पार होने के बाद हो गए दर्शन, अब चलो। ये बात नहीं। पार होने के बाद जमना पड़ेगा, अपने वृक्ष बनाने पड़े। हजारों के तादाद में जब ये वृक्ष बनेंगे तभी तो नहीं ये संसार ठीक हो सकता है। इसकी पूरी व्यवस्था की गई है, सारा इंतजाम है, सिर्फ आप आइए। It's all organized. It's for you to come and to know about. Of course, we don't take money, so we don't have a sort of a huge, big ashram sort of a place to receive you, but it's a humble place. You should come and see for yourself. A day may come when we may have something bigger than that. Heart is big. Please come, all of you, and learn and study and become masters. And you can give realization to thousands. Now what is this cool breeze? What you have felt, you have to know what is this power. Supposing if you have some foreign money and you don't know what this is worth, what's the use? You must spend it. Once a week, if you don't mind, please try to come. Then you will be all the time in meditative mood and completely established in your own powers. But know what powers you have. Know what you are. Know your glory. You don't know it, so all this is for you. आप सबके लिए माँ का प्यार हर समय इंतज़ार करता रहेगा। आशा है आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे।
आंखें आपकी खुली हैं तो आराम से श्री माता जी का फोटोग्राफ देखें। जो निर्विचारिता स्थापित हुई है उसका आनंद लें। The peace, thoughtlessness that has been established within, we can all enjoy it. Continue to watch Srimadaji's photograph without thinking. And the joy present in these pictures, all of people getting their self-realization. पहले आत्म साक्षात्कार एक गुरु से एक शिष्य को जाता था। आज के युग में सहयोग द्वारा जन जन तक योग पहुंच रहा है। आइए इसका लाभ उठाएं। सहयोग को अपने जीवन में प्रस्थापित करने के लिए और जानकारी पाने के लिए इन वेबसाइट्स पर आप जा सकते हैं। फेसबुक पर एक पेज है माय सहज योगा, यूट्यूब पर सहज योगा चैनल है, वेबसाइट्स www.sahajayoga.org.in या freemeditation.com। टोल फ्री नंबर है 180030700800। Please use these social media to know more about Sahaj Yoga and establish Sahaj Yoga in your lives. We hope today's session will prove extremely beneficial to all those who attended it.